بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، آج پھر ہم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جو جناب جسٹس چودھری عبدالعزیز کی عدالت میں سماعت کے بعد یہاں موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نیشنل پریس کلب کے سابق فائنانس سیکرٹری اور راولپنڈی اسلام یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر وقار ستی کے خلاف ایک بلاسفیمی کا جھوٹا مقدمہ درج کرایا گیا تھا، جس کے خلاف پی ایف یو جے نے ملک بھر میں احتجاج بھی کیا اور وقار ستی کے ساتھ اس مقدمے میں بھی کھڑی ہے. آج پھر یہاں سماعت تھی صبح، اور میں شکر گزار ہوں کہ جڑواں شہروں کی صحافیوں کی تمام قیادت موجود تھی. پی ایف جے کے سیکرٹری جنرل جناب ارشد انصاری صاحب یہاں موجود تھے. شکیلا جلیل جو ہماری پریس کلب کی انچارج ہے وہ موجود تھی. فارمر پریزیڈنٹ پریس کلب طارق صاحب موجود تھے. فارمر گورنر باڈی شلال موجود تھے. طاہر شاہ صاحب، عباسی صاحب اور وقار ستی ہمسیلف، آر آئی جے کے جنرل سیکرٹری طارق ورک صاحب، نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ انور رضا صاحب، آر آئی جے کے سیکرٹری فائنانس جو ہیں کاشان اکمل، اور آر آئی جے کے پریزیڈنٹ احمد عباسی، اور ہمارے دوست غفران چشتی صاحب ہر پیشی میں موجود ہوتا ہے. اور ہمارے آج کے وکیل جو ہیں جو پہلے دن سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، غلام مصطفی اقبال صاحب، اور ہمیشہ جو اسکرین پہ نظر نہیں آتے کیمرے کے پیچھے تعلق ہمارے ساتھ ہیں، جو نیشنل پریس کلب کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں. عزیز دوستو، آج صبح جب سماعت شروع ہوئی تو جناب جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب نے عدالت میں موجود ایس ایچ او اور متعلقہ تفتیشی افسر سے پوچھا کہ آپ کو موجود ہے کہ جس دفعہ کے تحت آپ نے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ دفعہ بنتی ہے یا نہیں بنتی. اس وقت انہوں نے سخت سرزنش کی پولیس اہلکاروں کہ آپ کو پتا ہے کہ ان دفعات کے تحت مقدمہ کیسے بنتا ہے، آپ نے پڑھا ہے اس چیز کو. اور پھر انہوں نے دوسرا کویشچن کیا کہ اگر یہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر یہ مقدمہ کس کے خلاف بنے گا. تو ایس ایچ او اور تفتیشی جو ہیں وہ فاضل عدالت کو مطمئن نہ کر سکے، اور انہوں نے آرڈر کیا آنریبل جناب جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب نے کہ فوری طور پر اے ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے انہیں فوری طور پر عدالت میں انہوں نے طلب کیا، اور سماعت کا وقفہ ہوا. وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو ایس پی انویسٹیگیشن موجود تھے. آنریبل جسٹس جناب چودھری عبدالعزیز صاحب نے ایس پی صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ دفعہ بنتی ہے وقار ستی کے خلاف، کیا آپ نے اس ساری دفعہ کو پڑھا ہے. اور ابتدا میں ہی جب انہوں نے کہا کہ عام طور پر آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایف آئی آر پڑھی جاتی ہے عدالت میں، لیکن آنریبل جسٹس صاحب نے وہ نہیں پڑھنے دی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہ پڑھیں، جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں یہاں پڑھا جانا چاہیے. اور پھر انہوں نے آنریبل جناب جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب نے ان سے پوچھا کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس ملک پر آپ رحم کریں. پولیس والوں کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باقی جو لوگ کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، آپ رحم کریں، کم از کم آپ تو قانون کو دیکھ لیا کریں. کسی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے ایف آئی آر درج نہ کیا جائے. اس طرح کے کومنٹس دیے آنریبل جناب جسٹس صاحب نے. اور پھر انہوں نے ایس پی صاحب سے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جائیں، آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ ایف آئی آر یہاں عدالت میں ختم ہو جائے تو پھر یہ مقدمہ کس کے خلاف بنے گا، اس کے سیکوینس جو ہیں وہ کیا ہوں گے، آپ کو کیا کیا فیس کرنا پڑے گا. تو آپ جائیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو وقار ستی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے شامل تفتیش ہوئے، انہوں نے کہا جی ہاں یہ شامل تفتیش بھی ہوئے تھے اور انہوں نے سیریز بھی جمع کرا دی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے ان کا فرانسک کرایا ہے ان سیریز کا. تو خود پھر جناب جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کا فرانسک کرانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کہ وہ تمام چیزیں ٹی وی چینل پر چل چکی ہے، کہ کیا آپ ٹی وی چینل نہیں دیکھتے، اور وہ سوشل میڈیا پہ مختلف جگہ پر موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بلاسفیمی کے لاکھوں جو ہیں وہ درخواستیں جو ہیں واقعات جو ہیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اور درخواستیں جو ہیں وہ زیر کار ہیں.
लेकिन आप उन पर तो कार्रवाई नहीं करते, लेकिन ये आपने किसी को खुश करने के लिए इस सहाफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। बहरहाल आज उन्होंने 1 हफ्ते की मोहलत दी है पुलिस को कि आप जाएं और इंसाफ के असूलों के मुताबिक इस जो ये FIR है इसके मुताबिक फैसला करें, ताकि अदालत को बड़ी जजमेंट ना देनी पड़े। तो मैं समझता हूँ ये बहुत हौसला अफजा आज की हमारी ये समात थी। मैं दरख्वास्त करूँगा पहले अरशद अंसारी साहब लाहौर से तशरीफ आए हुए PFJ के सेक्रेटरी जनरल के वो आज की यूनिटी के हवाले से पैगाम दें, और फिर गुलाम मुस्तफा पंजवाल साहब अदालत के हवाले। जी शुक्रिया भट्ट साहब। जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि आज PFJ नेशनल प्रेस क्लब और तमाम हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे, और जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई अंदर वो भट्ट साहब ने तफसीलन आपसे एक साथ शेयर की। मैं समझता हूँ कि आज जज साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत अच्छा एक डिसीजन भी दिया, और ये भी कहा कि वाकई के इस मुल्क पे खुदा का वास्ता रहम करें और रसूल और कानून जो इंसाफ है वो फराम किया जाए लोगों को। तो बड़ी अच्छी समात हुई। उसमें उन्होंने सर्जिश भी की पुलिस वालों की कि खुदा का वास्ता आपको कुछ पता भी नहीं है, 204 में ये लगा देते हैं, आपको उसका मतलब भी नहीं पता। तो उसको काफ़ी सख्ती से और उनको पुलिस को ये सारी डायरेक्शन दी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी, और एक जो झूठी FIR है वो झूठी ही होती है। तो वो साबित हुआ कि वकार सती पे जो मुकदमा हुआ था वो झूठी एक FIR थी, और भाई इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इसमें इंसाफ मिलेगा और इस FIR को ख़त्म किया जाएगा। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने अनलेबल दोस्त गुलाम मुस्तफा पंजवाल जो मुमताज़ का नुमाइंदा है और इस केस में जो है वो वकार सती साहब की तरफ से पेश हो रहे हैं कि वो आज के जो कानूनी निकाब से उस हवाले से मेरा दोस्तों का जिस तरह वेरी फर्स्ट डे से हमारा एक ही मौक़िफ़ था कि ये FIR जो है बिल्कुल हक़ के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, और पुलिस के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इख्तियार नहीं था कि वो वकार सती के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करते। और जिसकी तस्दीक आज ऑनरेबल जज जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब आपको इस जितना बड़ा जो जुर्म, जिस जुर्म में आपने वकार सती के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की है, जब इसका मतलब ही नहीं पता, इसकी सेंसिटिविटी का आपको मालूम नहीं है, तो आपने किस तरह FIR दर्ज की है। और बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहतरम अफजल भट्ट साहब ने आपको तमाम आज जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में बताया है। तो मेरा भी यही है कि जज साहब ने बड़ा ही अच्छे अंदाज में और इस मुल्क को बतौर एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी और एक सच्चा मुसलमान होने की हैसियत से बड़े खूबसूरत अंदाज में आज पूरी प्रोसीडिंग को होल्ड किया है, और इससे अच्छे अंदाज में आज प्रोसीडिंग नहीं हो सकती थी। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आज पुलिस को कहा है कि बेहतर यही है कि आप इसका को बेहतर तरीके से वे आउट करके इस FIR को खारिज करें, ताकि मुझे कोई ऐसा आर्डर पास ना करना पड़े जिसकी वजह से किसी और के खिलाफ FIR आपको दर्ज करनी पड़े। और साथ ही साथ मोहतरम अफजल भट्ट साहब ने फरमाया है कि हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ दरख्वास्तें मुलाज़िम की पड़ी हुई है, लेकिन आप उसके खिलाफ उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन एक जर्नलिस्ट जिसने अपना एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पे एज ए प्रोफेशनल सहाफ़ी होने के से अपना फ़र्ज पूरा किया है, आपने उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी है। तो मेरी हुकूमत दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और पंजाब गवर्नमेंट से भी बतौर एक वकील होने की गुजारिश है कि आप उन लोगों के खिलाफ FIR करें जो वाकई ब्लास्टिंग कर रहे हैं। इस तरह की झूठी बेबुनियाद FIR दर्ज के ना वक्त कोर्ट का वक्त ज़ाया करें, ना पुलिस का वक्त ज़ाया करें, ना अपनी आखिरत खराब करें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारी जो नेशनल प्रेस क्लब कैंप ऑफिस रावलपिंडी की इंचार्ज है शकीला जलील, वो डे 1 से कि हम तो शायद 8:30 बजे पहुँचे हों, लेकिन शकीला जलील जो है वो सुबह 8 बजे से यहाँ हाई कोर्ट में मौजूद थी। मैं शकीला से दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रा इस हवाले से दोस्तों को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि हम लोग जो कुछ आज कर रहे हैं, जिस तरीके से हम वकार सती साहब के केस को लेकर चल रहे हैं, उसमें सारा जो किरदार है वो कायदे साहब का, अफजल भट्ट साहब का है, जो हमेशा सहाफ़ियों को जो है वो मुतहद रखते हैं। और वकार सती साहब के खिलाफ जो ये एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, झूठी FIR हुई, उसकी हम पहले रोज़ से मजम्मत भी कर रहे थे, और हम यही कह रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है इसमें सुरखरू होंगे। और आज जो मौजूद अदालत ने जिस तरह के रिमार्क्स जज साहब की तरफ से आए हैं, वो यकीनन हमारी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी है। और हमें ये यकीन है कि अल्लाह पाक ने जो है
जिस तरह पहले हमें सुरखरू किया है, इसी तरह हम अब भी सुरखरू होंगे। और मैं इस हवाले से अपने तमाम जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ियों का जो है शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि कोई भी सहाफ़ी जब किसी मुसीबत में होता है, किसी मसले का शिकार होता है, तो तमाम दोस्त उसके लिए मुतहद हो जाते हैं और यही इत्तेहाद जो है ना हमारी कामयाबी है। और इंशाअल्लाह ताला इससे अगली दफ़ा जो अगली पेशी करी गई है उसमें उम्मीद है हम कि वकार सत्ती साहब इंशाल्लाह सुरखरू होंगे और हम उसके बाद जो है ना वो एक दफ़ा फिर ये साबित के हवाले से जो है वो जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। जो गुज़श्ता 4 पेशियाँ हों या आने वाली पेशियाँ हों, इन पे आने का जो आने का एक वाज़ेह मकसद, वाज़ेह मैसेज ये है कि पाकिस्तान की जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान भर की, उसने कभी अपने आप को कानून से बेहतर नहीं समझा, कभी प्रोसीजर से इनकार नहीं किया, कभी SOP से फ़रार इख्तियार नहीं की। और जब भी कोई ऐसा किसी को शिकायत होती है, वो झूठी हो या सच्ची हो, ज़्यादातर झूठी होती हैं, हम अपने आप को कानून की जो अदालत है उसके सामने पेश करते हैं, उसको बाकायदा तौर पर फेस करते हैं। मुकदमा जो चल रहा है इस पर जो रिमार्श है उस पर वो सबने सुने हैं, उस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा कि चूँकि अभी सब जो मामला है जब फैसला हो जाएगा तो हम सब दुनिया देखेगी इसके केसेस क्या थी, इसमें एविडेंस क्या थी। लेकिन ये आज की प्रोसीजर गुज़श्ता जो समातें हुई हैं, मुस्तफ़ा साहब ने जिस तरह से इसको ट्रीट किया है, बाकी साथियों ने जिस तरह से वकला ने केस को लड़ा है, वो इस बात को साबित करता है कि किस तरह से ताकतवर अफराद जो है वो मीडिया को दबाने के लिए कानून को अपनी मुंह के नाम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर एंड ऑफ द डे जो सहाफ़ी बरादरी है उसकी जो कट है, उसका इत्तेहाद है, उसकी यूनिटी है और कानून पसंदी है, उसकी ताकत से, उसके ज़रिए से, उसके ज़ोर पर फिर हम उन तूफ़ानों का रुख मोड़ते हैं अपने इत्तेहाद के साथ। जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं, गुज़श्ता पेशों में इकट्ठे हुए थे, सच्ची साहब हों, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, किसी छोटे छोटे शहर में कोई साथी जो है उस पर मुश्किल आती है, मुश्किल आएगी, तो हम PFG जनाब अरशद अंसारी साहब, भट्ट साहब, अनवर रज़ा साहब, दीगर कायदान की क़यादत में इकट्ठे रहेंगे, आते रहेंगे और आकर अपनी जो हक़ और सच की जो लड़ाई है उस पर अपना केस लड़ते रहेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा RMJ के जनरल सेक्रेटरी जनाब तारिक मलिक साहब से यहाँ मौजूद हैं, वो इस पर मेरा दोस्तों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, इसमें कोई शक नहीं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो झूठी FIR है ये सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए, क्योंकि वकार सत्ती साहब हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं और वो ट्विटर पे और फेसबुक पर हमेशा वो लिखते हैं। तो PTI के लोगों को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये मुकदमा बनाया। और आज जो अदालत में हुआ और जिस तरह से पुलिस की सरजनश हुई और उनसे पूछा गया कि आप इस FIR की में बताएं कि ये जो आपने दफात लगाई हैं ये क्या हैं, और पुलिस को ये भी पता नहीं था कि ये FIR में जो दफात हैं इसका क्या मकसद है और ये क्यों लगाई गई हैं, और बहुत ज़्यादा सरजनश हुई है। और हम इकट्ठे हैं और साथियों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जो हर पेशी पर तशरीफ़ लाते हैं और अपने साथियों का हौसला बुलंद करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं RMJ के सेक्रेटरी फाइनेंस काशान अकमल से दरख्वास्त करूँगा कि वो इसमें ज़रा बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। जैसा कि जिस अज़्म इस्तकामत का वकार सत्ती साहब ने मुज़ाहरा किया है और जिन हालात में उनको धकेलने की कोशिश की गई, जुड़वा शहरों की ना सिर्फ बरादरी ने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया, मुतहिद होके इस केस को भी फेस किया, और वकार सत्ती साहब ने भी इसमें राह फरार इख्तियार नहीं की बल्कि डट के मुकाबला किया है। और ये ऐसी कुव्वतों को जो इस तरह के केसेस बना के ना सिर्फ मुल्क का बल्कि आज़ादी इजहार राय को भी दबाने की कोशिश करते हैं, मुल्क के अंदर इस तरह की जो अफरा तफरी का माहौल है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक पैगाम है। सहाफ़ती बरादरी पहले भी मुतहिद थी, बहुत से आमर आए, बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत से लॉज लाने की कोशिश की गई, ये सिलसिला चलता आ रहा है। और पाकिस्तान की जो सहाफ़ी बरादरी है PFUJ की क़यादत में हम इंशाल्लाह जो हमारे हुकूक हैं उन पे अपना पहरा जारी रखेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब अनवर रज़ा साहब से कि वो आज की समात के हवाले से 2 सेकंड। शुक्रिया अफजल भट्ट साहब। हमने मुल्क में हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की और यही वजह थी कि वकार सत्ती पर झूठे मुकदमे के खिलाफ हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद थे, लेकिन हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया और आज हक और सच की फतह हुई। और आज जब चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब जस्टिस ने जब SSP इन्वेस्टिगेशन हामिद नियाज़ी साहब से पूछा कि 295A का मतलब बताइए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वकार सत्ती पर कायम किए गए झूठे मुकदमे में
कोई कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया गया। यही वजह है कि अब अदालत ने बड़ी बुर्दबारी और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए फेस सेविंग के लिए पुलिस को कहा है कि आप नेक्स्ट पेशी पर इस मुकदमे को खारिज करके लाएं, ताकि आपने, आपके मुद्दई ने और उस शख्स ने जिसने ये गुफ्तगू की है उसने ये जुर्म किया है, लिहाजा आप इस जुर्म में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करने से बचने के लिए इस कार्रवाई को ख़त्म करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे प्रेसिडेंट यानी रावलपिंडी शाम भाई और प्रदेश के प्रेसिडेंट जिनकी क़यादत में हम यहाँ मौजूद होते हैं आबद वासी साहब से कि वो दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करें और आज की प्रोसीजर के हवाले से जो पॉइंट रह गए हैं उनके बारे में। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आज बहुत इंतहाई अहम समाअत रही और हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा, वकासती को इंसाफ मिलेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपने कायद जनाब अफसर भट्ट साहब की क़यादत में और इस शहर के तमाम तर जर्नलिस्ट आज यहाँ पर मौजूद रहे, बड़ी तादाद के अंदर मौजूद रहे और तमाम जर्नलिस्टों को जो यहाँ पर आज समाअत के मौका पर और गुज़श्ता कई समाअत से आ रहे हैं सबको खराज तहसीन कि उनने एक यूनिटी का मुजाहरा किया और भरपूर पैगाम पूरे पाकिस्तान की साफ़ी कम्युनिटी को और प्रोफेशनल्स को दिया कि अगर किसी एक के ख़िलाफ़ अगर ज़्यादती होती है तो फिर उठ कर खड़े होकर आप आवाज़ बुलंद करें और सबकी आवाज़ बने ताकि कोई किसी भी लिहाज से जो अज़ार राय है उस पर पाबंदी या कदर लगाने की कोशिश न करे। मैं तमाम तो अपने दोस्तों का जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, प्रेस क्लब के सदर अमरारा साहब और RIUG के तमाम तरदारान और जनाब सदर PFUG अफसर भट्ट साहब, सेक्रेटरी जनरल रशीद अंसारी साहब और इसी तरह जनाब साबिक सदर जनाब तारिक चोई साहब और कदवाल साहब समेत तमाम अहबाब का मशकूर। बहुत शुक्रिया। अजीज दोस्तों, ये हमारा एक इत्तेहादो इत्तेफाक का जो एक काफिला है इंशाअल्लाह ताला ये रवा दुआ है। किसी भी जर्नलिस्ट पर जब कोई मुश्किल वक्त आएगा तो हम इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए उसके साथ खड़े होंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस केस से वकासती बाइज़्ज़त बनेंगे इंशाअल्लाह। भट्ट साहब जिंदाबाद।